Hello students, let's talk about Joan Galsworthy's play Loyalties. So let's have an overview of that play. Here is Ronald Dempsey. He has retired from his Majesty's service because he was having the habit of leading a life of action, so he couldn't know how to spend his time. So he involved himself in women and horses. But very soon he realized that it was not possible for him to have uh, his interest life. He couldn't maintain that stable ghursal, which was very costly, couldn't afford the expenses. So he left that. He had only one female horse, Rosemary. He gave it to his friend Ferdinand de Lewis. Now, for the women, he threw them all and he married one lady, that is Mabel. He found that Mabel had that spirit which he expected in his wife. So that was how he left his interest in women and horses. In spite of the fact that he was obviously penniless, Rooney managed to keep his membership in his favorite London clubs, and his friends invited him and his wife to their weekend parties in the country at Meldon Court, which is the home of his old friend Charles Windsor. Rooney discovered that D. Lewis had sold for £1,000 the horse that Rooney had given him. He was naturally embittered by the discovery, and later in the evening, his resentment prompted him to bet D. Lewis that he could jump to the top of a bookcase 4 feet high. He won his bet. No. But D. Lewis was contemptuous of a man who would indulge in such parlor games for the sale of a little money. That bet was for £10. Around midnight, Windsor and his wife were awakened by D. Lewis, who told them that there had been a robbery of £10,000 which he had got by selling that horse. D. Lewis demanded an investigation. The Windsors were reluctant to incriminate either their servants or their friends. But at the insistence of D. Lewis, the police were called. The police came. Ronnie's friends immediately arrayed themselves against D. Lewis for his tactlessness in handling the matter. He instantly interpreted their attitude as a result of prejudice because he was a Jew, and Ronnie substantiated his conclusion by taunting D. Lewis with his race. Although they tried desperately to be fair, Ronnie's friends had to admit that D. Lewis had behaved badly, and they suddenly remembered that his father had sold carpets wholesale in the city. After all, D. Lewis was a little too pushing in spite of his money. He didn't exactly belong to the Mayfair and country set. D. Lewis carried into the club to which both men belonged the enmity aroused by D. Ronnie's insult to his race. And he openly accused Ronnie of the theft. D. Lewis accused Ronnie of the theft. And D. Lewis said that his money had been stolen by Ronnie.
Roni immediately challenged him to a duel, but since such barbaric customs were no longer tolerated among gentlemen, so D. Lewis was saved. Roni then asked his wife Mabel to go with him to another country, that is Nairobi. But she, believing in her husband's innocence, begged him to remain there and prove his goodness, prove his name. Realizing that to do otherwise would be an admission of guilt, then Roni consulted a lawyer and entered a suit against D. Lewis for defamation of his character. However, the lawyer selected to defend Ronnie's case was the worst choice that a man in Ronnie's position could possibly have made. So, because that friend is that lawyer is has got training under a senior lawyer who favored sincerity. He said that justice is prior to any sort of loyalty. Now, what happened? Roni had an affair with an Italian girl, and her father, Ricardo's, he threatened Roni that they would tell everything to his wife, that Roni had cheated that girl, so that's why, otherwise he should give him the money. So for that, Roni had to steal the money, and he had given that money to Ricardo's. However, later on, Roni had told everything to Mabel, but Mabel had faith in her husband. She said that she believes him, whatever he is. She loves him passionately. Anyway, then investigation was done, and the money was coming, and that money had passed into many hands, and the numbers were recognized. So it was finally admitted that it was Roni who had stolen the money. So that lawyer, he could not defend Roni because Roni was at fault. Roni had stolen the money. So that lawyer suggested Roni that he should withdraw his case and he should run away from that country. Then there is another major also, his senior army officer, General Canning. He suggested, he had talked to his friend in the Spanish War, who was there in the Spanish War, and he had suggested Roni, he had advised Roni that he should go and involve himself in that Spanish War. So because that General Canning doesn't want that the persons who belong to army, they should get defamed. So that was there. And then finally, when the police came, then what happened? Rooney had shoot himself, and that is, he had committed suicide. So that's how the play ends. Of course, D. Lewis also withdrew all his grudges. He was not interested in money because he was already a rich man. He was just taking revenge because he was a Jew and Ronald was a Christian. So there were differences between Christians and Jews. Christians, they don't like Jews and all that. They consider him the persons belonging to the lower set of the society. Those who were not eligible to be the part of elite groups of society. So let me talk about this whole story in Hindi also, so that some of you don't understand in English, they can understand what is there in that story. है ना? तो लॉयल्टीज जो है, इसमें मेजर कैरेक्टर कौन है? मेजर रोनाल्ड डेंसी. He was a young captain, DSO. He has retired from the army, and because आर्मी वालों को बहुत एक एक्टिव लाइफ लीड करने की आदत होती है, तो अब उसको रिटायरमेंट, वैसे तो वो यंग है, आर्मी से रिटायर हो गए, तो अब उनको समझ नहीं आता कि भी क्या करें.
कैसे अपना टाइम एक एक्टिवली पास करें। तो आर्मी वालों का जैसे इंटरेस्ट होता है, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन हॉर्सेज एंड वीमेन, है ना। तो लेकिन अब पैसा है नहीं उतना, क्योंकि वहां से तो रिटायरमेंट हो गई। तो अब हॉर्सेज रखने के लिए स्टेबल चाहिए, घुड़साल चाहिए, जो कि अब कॉस्टली पड़ता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसने उसको छोड़ दिया, और उसके पास एक फीमेल हॉर्स थी जिसका नाम रोज मैरी था। वो उसने अपने फ्रेंड फर्डिनेंड डी लेविस को दी थी। ठीक है। जहां तक वीमेन की बात है, तो उसने वीमेन भी सब छोड़ दी। एक लेडी जिसका नाम मेबल था, जिसमें वो स्पिरिट थी, जो वो अपनी वाइफ में चाहता था कि अगर उसकी मैरिज हो तो उसकी वाइफ में वो स्पिरिट होनी चाहिए। तो उसने उस लेडी मेबल से मैरिज कर। ठीक है। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट in spite of the fact that in spite of the fact that he was obviously penniless, Roni managed to keep his membership in his favorite London clubs. रोनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस वो किस somehow or the other वो अपना उसने मैनेज किया कि लंदन के जो उसका फेवरेट क्लब था उसमें उसकी मेंबरशिप बनी रहे, और उसके फ्रेंड्स भी उसको और उसकी वाइफ को वहां पे वीकेंड पार्टीज पे इनवाइट करते रहते थे। मेल्डन कोर्ट जगह का नाम है ना, जो कि होम है, घर है उसके पुराने फ्रेंड चार्ल्स विंसर का। तो जब एक पार्टी में रोनाल्ड डेंसी जाते हैं, रोनाल्ड डेंसी का नाम रोनी भी होता है, तो जब वो वहां जाते हैं तो उनको पता चलता है कि डी लेविस ने उस रोज मैरी फिली को 1,000 पाउंड में बेच दिया है ना। ये सुन जान के उनको बहुत गुस्सा आता है, और अपने गुस्से को वो अपने इतना ज्यादा उसमें गुस्सा आता है, तो उस गुस्से की वजह से वो डी लेविस के साथ शर्त लगाते हैं, फर्डिनेंड डी लेविस के साथ शर्त लगाते हैं कि वो 4 फीट ऊंचाई कि वो जंप करे बुक केस के टॉप पे, जिसकी हाइट 4 फीट होती है ना। अब रोनाल्ड तो उस शर्त को आराम से जीत गया, क्योंकि आर्मी वाले तो वैसे ही बहुत फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब डी लेविस को गुस्सा आता है कि भी देखो कैसी होची हरकतें कर रहा है थोड़े से पैसों के लिए, है ना। मिडनाइट तो हो गई है बात खत्म, मतलब दोनों में ग्रज सी तो हो गई आपस में। आधी रात के समय विंसर और चार्ल्स विंसर और उसकी वाइफ को उठाया जाता है। डी लेविस बोलते हैं कि उनके 1,000 रुपए किसी ने चोरी कर लिए। 1,000 रुपए क्या, 1,000 पाउंड जो उनके रुपीज थे वो किसी ने चोरी कर लिए हैं, और अब उनको पता चलना चाहिए कि भी चोरी किसने की, है ना। चार्ल्स विंसर ये नहीं चाहते कि उनके सर्वेंट्स या उनके गेस्ट जो हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम आए, तो इसलिए वो नहीं चाहते। लेकिन डी लेविस तो ट्रूथ के लिए ज्यादा लॉयल है अपनी लाइफ में, तो वो इस बात पे जिद पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पता करना ही पड़ेगा। एट लास्ट पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस आती है ना। और रोनाल्ड के जो फ्रेंड्स हैं वो डी लेविस को बोलते हैं कि वो टेकलेस है, उसको इस छोटे से मैटर को इस मैटर को हैंडल नहीं करना आया, है ना। फिर वो बोलते हैं कि भी वो डी लेविस कहता है कि वो उसके लिए ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो प्रेजुडिस रखे हुए हैं, पूर्व धारणाओं से ग्रसित होते हैं ना, जैसे कि भी अब क्रिश्चियंस ज्यूज को पसंद नहीं करते। और डी लेविस, फर्डिनेंड डी लेविस जो था वो क्रिश्चियन था, जू था, है ना। तो फिर वो उसकी रेस को लेके, यानी कि सभी ज्यूज को लेके वो के ऊपर वो कमेंट्स करते हैं। तो हालांकि वो उसके फ्रेंड्स जो हैं बहुत फेयर होने की कोशिश करते हैं, ईमानदार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी रेस के लिए लॉयल्टी है उनमें, तो उनको ये बात एडमिट करनी पड़ती है कि भी डी लेविस ने अच्छे से बिहेव नहीं किया। और फिर वो सडनली रिकॉल करवाते हैं उसको कि भी तुम्हारे फादर जो है कारपेट्स बेचा करते थे होलसेल मार्केट में, है ना। मतलब उसको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वो रोनी का साथ देते हैं। कौन? रोनी के फ्रेंड्स। रोनी के फ्रेंड्स रोनी का क्यों साथ देते हैं? क्योंकि उनको होता है वो अपनी कास्ट के लिए
लॉयल होते हैं। तो बोलते हैं कि डी लेविस एक छोटी उसको बिलोंग करता है, वो एक कंट्री सेट की पार्टीज को, कंट्री सेट के क्लब्स वगैरह के लिए वो के लायक नहीं है ना। तो उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, रोनी इमीडिएटली चैलेंज डी लेविस फॉर द डुएल। वो उसको ड्यूएल के लिए इनवाइट करता है। ड्यूएल के लिए समझ गए हिंदी में क्या बोलते हैं, युद्ध, आपस में दोनों की फाइट के लिए। पहले तलवारों में फाइट होती थी दो जनों के बीच में, ये दिखाने के लिए कि कौन ज्यादा हीरोइक है। तो अब उसमें भी डी लेविस तो फिर बोलते हैं कि ये बारबेरिक सा गेम है, जेंटलमैन के बीच में अच्छा नहीं लगता। तो ये सोच के इस बात को रफा दफा कर देते हैं। तो इस तरह से डी लेविस जो है वो फिर बच जाते हैं। अब रोनी की वाइफ, अब ये चल ही रहा है सब कुछ है ना। तो रोनी की वाइफ मेबल को रोनी बोलते हैं कि अपन नैरोबी चलते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। नहीं तो उसको अपने आप को, नहीं तो अगर वो चले जाएंगे तो उनको गिल्टी प्रूफ किया जाएगा। तो वो यहीं रह के अपने नाम को बचाए और अपनी इनोसेंस को प्रूफ करे। फिर रोनी जो है वो एक लॉयर सेलेक्ट करते हैं और वो केस मानहानि का दावा करते हैं, मानहानि का दावा करते हैं किसके अगेंस्ट, पानी उसके अगेंस्ट केस करते हैं डी लेविस के अगेंस्ट। तो अब उधर क्या है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती रोनी की या रोनन डेंसी की सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि भी उन्होंने वो लॉयर चुना जो लॉयर जस्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लॉयलिटी की बजाय। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली बात हो गई। अब क्या था, अब क्या था कि वो जो नोट थे वो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो तीन हाथों के से निकले, फिर जिसकी वजह से क्या हुआ, नंबर्स पता चल गए। अब नंबर्स पता चलने के बाद अब ये बात सम और अदर प्रूव्ड हो गई कि भाई चोरी किसने की है, रोनी ने की है। तो लॉयर को ये बात पता चल जाती है। लेकिन लॉयर ने किस चीज के लिए, लॉयर जो है वो लॉयल किस बात के लिए है, ट्रूथ के लिए। तो वो रोनी को सजेस्ट करता है कि वो अपना केस विड्रॉ कर ले, है ना। उसी तरह से दूसरी तरफ एक बीच में मेजर है कैनिंग, वो रोनी के लिए, उनको वो लॉयल हैं अपनी आर्मी के लिए। तो इसलिए वो स्पेनिश वॉर में उनके कोई फ्रेंड होते हैं, मेजर होते हैं, वो उसको बात कर लेते हैं और रोनी को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने आप को यहाँ से चला जाए और स्पेनिश वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि वो किसी तरह से नहीं चाहते कि जो बंदा आर्मी को बिलोंग करता है वो किसी भी तरह से डिसऑनेस्ट प्रूव, है ना। और वो लॉयर जो है वो ये नहीं चाहता कि भी मैं इसी का ही ये मेरा ही तो क्लाइंट है और मैं इसको डिसऑनेस्ट प्रूव करूं, ये डिसऑनेस्ट प्रूव हो तो उससे उसकी अपनी लॉयर की रेपुटेशन भी डाउन होती है। तो इसलिए वो उसको सजेस्ट करता है कि भी तू विड्रॉ कर ले, अपने केस को विड्रॉ कर ले। तो रोनी अपना केस मानहानि का जो केस था वो जो उसने फाइल किया था वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, और इधर क्या हुआ कि भी जब पुलिस आती है, पुलिस के आने से पहले, हालांकि और रोनी ने भी चोरी क्यों की थी, क्योंकि रोनी एक इटालियन लड़की से प्यार करता था। तो उसके जो फादर हैं रिकार्डोज, वो रोनी को धमकी देते हैं कि भी हमें ब्लैकमेल करते हैं कि उनको वो पैसे दे, नहीं तो वो मेबल उसकी वाइफ को बता देंगे कि उसके हस्बैंड के पहले ऐसे इस लड़की से रिलेशंस थे। तो इस वजह से रोनी को चोरी करनी पड़ती है। तो रोनी ने जो 1000 पाउंड चोरी किए थे वो उसने पैसे किसको दिए, रिकार्डोज को दिए।
ठीक है। हालांकि उसने बाद में सारी सच्चाई मेबल को बता दी, लेकिन मेबल क्या है, वो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल है, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, चाहे उसको दुनिया बेईमान कहे, वो उसको प्यार करती है और उसी के लिए वो हमेशा वफादार रहेगी। तो लेकिन लास्ट में क्या होता है कि पुलिस के आने से पहले तो जो रोनी है वो अपने शूट कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर ये प्ले खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करें, तो बात क्या है कि भी टाइटल की बात करें, इस प्ले का टाइटल जो है लॉयल्टीज। तो वन व्हाट वी विल सी दैट होल ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड लॉयल्टीज। एवरीबॉडी इज लॉयल, ऑल द करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स इस प्ले में हैं, सभी करेक्टर्स लॉयल हैं किसी ना किसी पर्सन के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए। ठीक है ना। कोई अपनी रेस के लिए लॉयल है, कोई ट्रूथ के लिए लॉयल है, मेबल है तो वो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल है। ठीक है ना। तो that's how the things are moving. We will talk about theme and title of this play in our next video lecture. I hope you must have understood. Thank you.